Hello and good morning to all my dear students. So today, it is your welcome in the new chapter, in the class of new chapter of macroeconomics, the very new and interesting chapter, that is chapter number 10, government budget, the most interesting chapter of macroeconomics. We all know that government publishes its budget on 1st of February. आपने बहुत बार देखा भी होगा न्यूज चैनल्स भी फरवरी मंथ में तो बजट पे ही डिस्कशन चलता रहता है. So अभी in this chapter we will study what is the basic meaning of government budget, how it is prepared by government, what are the objectives behind preparing the government budget. So basically before starting the chapter, let's understand the general meaning of budget. What is a budget? अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपकी फैमिलीज में भी मंथली बजट प्रिपेयर होता है. क्या मतलब होता है उस बजट का? उस बजट का मतलब होता है अ रिकॉर्ड ऑफ आवर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और कहाँ कहाँ मुझे उसको एक्सपेंड करना है, उसका आउटफ्लो कहाँ कहाँ करना है. जब मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ मेरे पर्सनल लेवल पे तो वो मेरा बजट होता है. उसी तरीके से इकोनॉमी में बजट होता है. तो पहले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता रहे हैं दैट इन मॉडर्न वर्ल्ड एवरी गवर्नमेंट वांट टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री. ठीक है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का टारगेट होता है. It requires a number of infrastructural, economic and welfare activities. When we are focusing on the needs of entire country, we have to focus on various aspects. Aspect number one and most important aspect is economic aspect. The first aspect on which we need to focus is economic aspect, means providing economic opportunities to every individual of the nation. Then we need to develop some infrastructural facilities in the economy, some welfare activities also, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लिस्ट अप करना इम्पॉसिबल है. आगे देखिए, all these activities requires a huge expenditure to be incurred. When a government want to perform these activities, a government required a huge expenditure. This requires appropriate planning and policy of the government. Now, if a government want to spend on the economy, then the spending will be systematic only when the government is making plans and policies for such spending, right? So the solution to all these problems is budget. Budget is a document containing detailed programs and policies of action for the given fiscal year. Fiscal year means the financial year. So for upcoming financial year, the government prepares a document which contains detailed programs and policies for entire year. ठीक है, for different sectors. Government सब कुछ बता देती है. Now have a look on this definition. Most appropriate meaning. Government budget is an annual statement showing item-wise estimates of receipts and expenditures during a fiscal year. It means, what is government budget? It is basically a statement which is prepared for an annum. Means we are preparing it for a 1 year. Now what it is showing? It is showing item-wise estimates. Estimates यानी estimated है क्योंकि upcoming year के लिए. So I can't show the actual revenue and actual expenditures. गवर्नमेंट ने तो सिर्फ बताया है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स उसको कितनी कितनी हो सकती है एंड व्हाट आर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. फरवरी में इशू हो जाएगा, अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक का होगा. जैसे फेब 2021 में जो बजट आया वो बजट था 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का. 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का. तो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट व्हिच शोज आइटम वाइज एस्टिमेट्स. आइटम वाइज एस्टिमेट्स मींस गवर्नमेंट एलाबोरेट करेगी एक एक चीज को इन इट्स बजट. नाउ एस्टिमेट किसके? रिसिप्ट, जहां जहां से पैसा आने वाला है वो और कहां कहां पैसा जाने वाला है वो. इट मींस इनफ्लोज और आउटफ्लोज सबको आप बता दोगे. नाउ हैव अ लुक. ये इंपॉर्टेंट बात है. The receipts and expenditures true false में भी आ सकता है और assertion reason में भी आ सकता है. The receipts and expenditures are not actual figures but the estimated values for coming fiscal year. ये actual figures नहीं है, ये सिर्फ estimated figures है. गवर्नमेंट ने सिर्फ आइडिया लगाया है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में इतनी रिसिप्ट्स और इतने एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं. So you must make it clear in your mind that these are only estimated figures, these are not the actual figures. ठीक है, अब आपको assertion reason में दे सकते हैं. गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. अब इसके नीचे रीजन में दे देंगे बिकॉज it is simply an estimation of upcoming receipts and expenditures for upcoming years.
तो आपका बिल्कुल दोनों बातें सही होगी। ये एस्टिमेट्स को शो कर रहा है, ये एक्चुअल फिगर्स को शो नहीं कर रहा। नाउ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है गवर्नमेंट बजट के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, हैव अ लुक। Yes. So the first point is telling us that actually budget is prepared at every level. Central level पे भी बन रहा है, local levels पे भी बन रहा है, state levels पे भी बन रहा है, but we have to go with only union budget. हमें तो union budget की बात करनी है। बाकी के जो बजट है वो आप अपनी हायर स्टडीज में पढ़ेंगे जब आप आगे इकोनॉमिक्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, estimated receipts and expenditures are planned as per the objectives of government. गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग ही वो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स को प्लान करेगी, ठीक है, प्लान करके बजट में प्रेजेंट करेगी। ओके, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। So according to the third point, in India, budget is prepared in the parliament and the president may direct, but generally हमारे यहाँ पे अभी तक की डायरेक्शन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कब करता है बजट को? ऑन 1 फरवरी, ठीक है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट की डायरेक्शंस अभी तक सेम ही चल रही है बहुत सारे ईयर्स से। हमारा बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। नाउ हैव अ लुक, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इट मींस 1 फरवरी को तो ये प्रेजेंट हो रहा है, अब अगर इसको अप्रूवल मिलेगा तो ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। Now, the budget reveals the financial performance of the government in last year and financial policies for upcoming year. This is very most important. In India, whenever the budget is prepared, in government budget, the performances of last year are also given. बताया जाता है proper that in previous year we have planned to incur this expenditure on this segment, but हमने इतना नहीं करके इतना किया था और हमारी actual performance क्या रही थी। फिर उसके बाद में ये प्रेजेंट किया जाता है कि फॉर अपकमिंग ईयर हमारी ये प्लानिंग है, हम आने वाले साल में ऐसे ऐसे करके प्लान करने वाले हैं। तो दोनों साल की बात होती है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की भी बात होती है और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की भी बात होती है। आगे देखिए, आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या पढ़ना है हमें? ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं गवर्नमेंट। मैम आप म्यूटेड हो। ओके, आई वॉज म्यूटेड इन बिटवीन द क्लास। अभी मेरी आवाज आ रही होगी, देवांशी ने मुझे बता दिया, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए, मैं आपको बता रही थी दैट वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या गोल्स है गवर्नमेंट बजट के। हैव अ लुक ऑन नंबर 1, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, दोनों सेक्टर साथ में वर्क कर रहे हैं, द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, राइट। इंडिया इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ पब्लिक वेलफेयर पे भी फोकस करे। इकोनॉमी में रिसोर्सेज का अलोकेशन इस तरीके से हो दैट वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, गवर्नमेंट कैन आल्सो प्रमोट सोशल वेलफेयर फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट को कैसे रिसोर्स अलोकेशन को इन्फ्लुएंस करना है, हैव अ लुक। टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। Now, we know that India is an economy where there are regional disparities. कुछ एरियाज बहुत डेवलप है, कुछ बैकवर्ड रह गए। प्लस when private sector is producing the commodities, ऐसी बहुत सारे गुड्स है जो बहुत प्रॉफिट का टारगेट देके जाते हैं और कुछ गुड्स ऐसे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं देते। तो ऐसे में गवर्नमेंट को सभी गुड्स के प्रोडक्शन को एनकरेज करना है, तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज दी जाएगी। The goods which the government want to promote in the economy, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए टैक्स कंसेशंस देगी, सब्सिडीज देगी।
जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि खादी प्रोडक्ट ज्यादा बने, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इट कैन प्रोवाइड टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट चाहती है लिक्विड, सिगरेट्स और ऐसी चीजें कम बने, तो इट कैन पुट हैवी टैक्सेशन ऑन दीज गुड्स। तो आपको नंबर 1 पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट to such producers who are producing the commodities promoting welfare of the people of nation, whereas heavy taxation will be imposed on the production of the commodities which are harmful for human life, which are harmful for the environment. Why? Because government want to discourage the production of such commodities. तो ये reallocation of resource का first part है. Government financial resource को reallocate करना चाहेगी by giving tax concession और subsidies. ऐसी जगह एलोकेशन करवाएगी जहां गवर्नमेंट को मोर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, और ऐसी जगह से फाइनेंस को विड्रॉ करवाने की कोशिश करेगी जहां गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी को या एनवायरनमेंट को किसी ना किसी तरीके से लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां फिर भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहता, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे तो भी प्राइवेट सेक्टर वर्क नहीं कर पाए, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? उन पर्टिकुलर एरियाज में खुद प्रोडक्शन करती है, डायरेक्ट प्रोडक्शन करेगी गवर्नमेंट, तो अपने रिसोर्सेज खुद लेके, इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज को अपने अंडर में लेके, अपनी आपार में लेके, और फिर उसके बाद में पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करेगी। जैसे इसमें दिया हुआ है, there are many non-profitable economic activities which are not undertaken by private sector, like water supply, sanitation, law and order, national defense, etc. These are called public goods. Such activities are necessarily undertaken by government in public interest and to raise social welfare. So reallocation of resource में आपने पढ़ा, what government do? Government first of all uses the taxation and subsidy policy in order to encourage or discourage the production of certain commodities. Number 2, certain goods are directly produced by the government. Why? Because the government know that private sector will not be able to produce these goods for the collective welfare. अब यहाँ पे examples given है, यहाँ पे public goods और private goods क्या होता है ये given है. This is your part, आपको खुद करना है. Number 2, this one is very important. This one will be asked in assertion and reason, or it can be asked in simple MCQ pattern. Have a look. Redistribution of income and wealth, or we can say reducing the disparities or inequalities of income and wealth. When private sector is working in the economy, तो एक inequality आ जाती है, gap आ जाता है rich और poor का. तो ऐसे में गवर्नमेंट का रोल होता है कि गवर्नमेंट को ये रिच और पुअर के गर्ल्स को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है. How can the government do it? Government will collect heavy taxes from the richer section of society and will use that money for the welfare of poor sector of society, ताकि ये जो rich और poor का जो difference चल रहा है ये difference कम हो. So have a look what is written over here. Economic inequality is an inherent part of every economic system. Government aims to reduce such inequalities of income and wealth through its budgetary policy. Inequalities हर इकोनॉमी में है, गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी से इसको ओवरकम करती है. The government aim to influence distribution of income by imposing taxes on rich, ये याद रखना है, and spending more on welfare of poor. It will reduce the income of rich and raise the standard of living of poor, thus reducing inequalities in distribution of income. Is it clear to everyone? How will a government reduce the inequalities of income and wealth? Government will collect money in the form of taxes from richer section of society, and government will government will use this money for providing welfare services to the poor people. Government will utilize this money for promoting the welfare of poor section of society so as to reduce the disparities of income and wealth. Example is given, free LPG collection under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana of food and food grains at very nominal price to BPL families by government help to raise the quality of life of BPL population. But ये government पैसा लाती कहाँ से? राशन शॉप्स पे अगर गवर्नमेंट बहुत ही नॉमिनल रेट पे पुअर्स को अवेलेबल करवा रही है फूड ग्रेन, तो वो पैसा आया कहाँ से? वो पैसा आया फ्रॉम द टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने कहाँ से रिसीव किया? फ्रॉम द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. Okay, now this one is very important again. Economic stability. Economic stability means freedom from the ill effects of inflation and deflation. Both inflation and deflation are harmful for us, right? So economic stability basically means removing the price fluctuations from economy and maintaining a simple certain level in the economy, and just
coping up the problems of inflation and deflation. So have a look, गवर्नमेंट कैसे करती है. इन्फ्लेशन कब आता है पहले तो ये बताया हुआ है. देखिए क्या लिखा हुआ है, बुक की लैंग्वेज में समझते हैं. Economic stability means absence of large scale fluctuations in price. Small fluctuations will always come, but जो बड़े बड़े fluctuations है जिनको हम inflation या deflation कहते हैं उनसे उनको हटाना. Now, such fluctuations create uncertainties in the economy. Government can exercise control over these fluctuations through taxes and expenditure. Taxes और expenditure से, taxes जो लोगों से charge कर रही है और अपने expenditure policy से government can exercise a control over these fluctuations. आगे देखिए. Inflationary tendencies emerge when aggregate demand is higher than aggregate supply. ये यहाँ पे ये लैंग्वेज इसलिए यूज की गई है क्योंकि ये इन्फ्लेशन इन्होंने 7th चैप्टर में समझाया है. बट हम तो टर्म 1 का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं. वी हैवंट गॉन विद द चैप्टर 7. तो अभी आपको क्या समझना है, व्हेन ओवरऑल डिमांड इज मोर देन सप्लाई, then there will be a situation of inflation, right? We know, we have gone through the topic in banking also कि जब लोगों के पास purchasing power ज्यादा है, when they are ready to purchase more than the available goods and services, तो धीरे धीरे prices बढ़ने लगेगी. So in this condition, government will try to bring down the aggregate demand. कैसे कम करेगी डिमांड को, अपना एक्सपेंडिचर भी इकोनॉमी में कंट्रोल करेगी और हैवी टैक्सेस भी लगा दिए जाएंगे. ठीक है, गवर्नमेंट का भी जो एक्सपेंडिचर होता है वो एग्रीगेट डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर एंड आल्सो गवर्नमेंट विल पुट हैवी टैक्सेशन ताकि डिमांड धीरे धीरे कम हो. लिख लेना साथ में. और डिफ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द डिमांड. डिफ्लेशन कब आएगा, जब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है. तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी ताकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो. और गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज भी दी. तो पॉलिसीज, सरप्लस बजट की यूज की जाएगी इन्फ्लेशन में. सरप्लस बजट ऐसा बजट जहां पे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेगी और रिसिप्ट को बढ़ाएगी. रिसिप्ट बढ़ाएगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करेगी क्योंकि लोगों के हाथ में कैश नहीं छोड़ना है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन है. और गवर्नमेंट कैश का आउटफ्लो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, राइट. और डेफिसिट बजट जब गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी और अपने रिसिप्ट को कंट्रोल करेगी डिफ्लेशन के टाइम पे. ये सेंटेंस तो एक ही लिखा हुआ है छोटा सा, बट कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, तो ध्यान से समझ लीजिए इसको. द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट विल बी यूज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. सरप्लस बजट पॉलिसी मींस गवर्नमेंट की रिसिप्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना. तो रिसिप्ट ज्यादा है यानी गवर्नमेंट लोगों से टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रही है. हर फॉर्म में गवर्नमेंट लोगों से ज्यादा मनी अपने पास लेने की कोशिश कर रही है और एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कंट्रोल कर रही है, राइट. तो आप यहाँ पे ये लिख लीजिए बेटा साइड में, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सरप्लस बजट, इसके पास आप लिख लीजिए कि सरप्लस बजट होता क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट विल बी यूज्ड. तो आप यहाँ पे सरप्लस बजट वो सिचुएशन है when receipts are greater than expenditure. ठीक है, receipts are more than government expenditure, इसको सरप्लस बजट कहेंगे. और डेफिसिट बजट हम किसको कहते हैं, डेफिसिट बजट हम उस कंडीशन को कहते हैं जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स आर लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. रिसिप्ट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है. तो डिफ्लेशन अगर इकोनॉमी में है तो सरकार को मनी का फ्लो बढ़ाना है तो वो डेफिसिट बजट यूज कर लेगी, और इन्फ्लेशन के टाइम पे वो सरप्लस बजट यूज कर लेगी. आगे देखिए, मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज. अब गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर्क कर रही है तो गवर्नमेंट को उनको भी मैनेज करना है. कब कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है ये भी गवर्नमेंट अपने बजट में ही बता देगी. ठीक है, कौन सी पीएसयू को कैसे फाइनेंशियल हेल्प देनी है, इस साल किसको लॉस हो गया और किसके लॉस को रिकवर करने के लिए बजट में से पैसा अलोकेट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपने बजट में बताएगी. फिर उसके बाद नेचुरल मोनोपोलीज, जब एक सिंगल फर्म ही कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है जैसे इंडियन रेलवे, तो गवर्नमेंट को उसको कैसे मेंटेन करना है वो भी वो बताएगी. आगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक टारगेट रहेगा इकोनॉमी की ग्रोथ करवाना, राइट. गवर्नमेंट अपने बजट का एक इंपॉर्टेंट टारगेट रखेगी द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी.
इकोनॉमी की ग्रोथ कब होगी? जब इकोनॉमी में रियल जीडीपी इंक्रीज होगा। इट मींस इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा, है ना, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। अब बजट एक इंपॉर्टेंट टूल है इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाने से। कैसे? नंबर 1, अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स और अदर इंसेंटिव्स दे दे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, तो डेफिनेटली सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट अप हो जाएंगी, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट में? टैक्स इंसेंटिव्स और ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है ताकि मोर एंड मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इकोनॉमी में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मोर एंड मोर प्रोडक्शन। नंबर 2, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट क्या करेगी? इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर करने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट अप होगी। पहला, इकोनॉमी में रिसोर्सेज की डिमांड आएगी। अगर गवर्नमेंट को डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स बनवाने हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को रिसोर्सेज की जरूरत होगी, तो रिसोर्सेज की डिमांड होते ही प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होगी तो वापस इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, है ना। तो ऐसे अलग अलग चीजें करके गवर्नमेंट इकोनॉमी की ग्रोथ भी करती है। However, before planning such expenditure rebates and subsidies, government should check the rate of inflation and tax rate. Also, there may be a risk of debt trap if loans are too high to finance the expenditure. ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसा एक्सपेंडिचर प्लान करने से पहले, ये जो ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, इससे पहले इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लेवल भी चेक कर लेना चाहिए, और साथ में चेक कर लेना चाहिए करंट टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है तो ये एक्सपेंडिचर इकोनॉमी को और लॉस की तरफ ही लेके जाएगा, और अगर गवर्नमेंट बोरो करके ये एक्सपेंडिचर कर रही है तो गवर्नमेंट डेट ट्रैप में भी फंस सकती है। तो गवर्नमेंट को बहुत रैशनली सोचना है। आगे देखिए, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। सम एरियाज आर वेरी डेवलप्ड और कुछ एरियाज बैकवर्ड है, तो गवर्नमेंट को बैकवर्ड एरिया में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ओपन करवाए जा सकते हैं वो ओपन करवा के उन एरिया का डेवलपमेंट करना। सेस के बारे में आपको पता होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। जैसे घर में अगर हम में से किसी एक की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना, एक्स्ट्रा केयर होती है। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड रह जाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट उन बैकवर्ड एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक एरिया डिक्लेयर कर देती है, और ऐसे एरिया में बहुत सारे टैक्स कंसेशंस और बहुत सारे रिबेट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। क्यों प्रोवाइड करती है टैक्स कंसेशंस और रिबेट्स? ताकि उन जगह, उन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करें, ठीक है।